Hello students, welcome to all of you. Our today's topic is class 12th subject English, chapter number 8, and the name of the chapter is the letter A. In this video, we will discuss the most important question of this chapter, that is Christy Brown's character sketch. We will discuss the whole character word by word both in Hindi and Urdu. Dear students, before proceeding to our topic, let us have an overview of Christy Brown's character. Dear students, Christy Brown, he was an intelligent person. इंटेलिजेंट बच्चा था. ही वॉज क्रिपल बाई बर्थ. क्रिपल क्या होता है कि वो डिसेबल था, फिजिकली डिसेबल था बाई बर्थ. बट ही वॉज अ चाइल्ड ऑफ इमोशंस. इमोशनल बच्चा था. ही वॉज क्रोक्ड, बिल्कुल जो है वो टेढ़ा मेढ़ा, उसके मसल जो है वो क्या थे, क्रोव थे. ही वॉज सिंपैथेटिक था. एंड ही वॉज आल्सो ए राइटर, handicapped and imbecile child. He was declared imbecile by the doctors. These all are the qualities that we will discuss one by one in Christy Brown's character with the evidence from the story. Our question is, describe character sketch of Christy Brown. First of all, we have to write the introduction. In the introduction part, we have the letter A is the autobiography of Christy Brown, taken from my left foot. Christy Brown was a physically disabled child right from his birth. Though he was a handicapped, disabled child, he wanted to do all the activities of other children. Doctors gave up all the hopes and declared him both physically and mentally defected. But his mother never accepted that her son was mentally defected. His mother played an important role in his life. At last, Christy was able to express himself through written words. A writer describes only a little part of his life. His character can be well sketched under the following points. Dear students, लेटर ए जो है वो ऑटोबायोग्राफी है क्रिस्टी ब्राउन की. कहाँ से ली गई है? इट हैज़ बीन टेकन फ्रॉम माय लेफ्ट फुट. क्रिस्टी ब्राउन जो है वो फिजिकली हैंडीकैप्ड डिसेबल्ड चाइल्ड था राइट फ्रॉम हिज बर्थ. बर्थ से ही जो है वो डिसेबल्ड चाइल्ड था. बेशक ना वो एक डिसेबल चाइल्ड था फिजिकली. ही वांटेड टू डू ऑल द एक्टिविटीज ऑफ अदर्स. वे बाकी वालों की सारी एक्टिविटीज जो वो करना चाहता था. मदर took the child to the doctors and hospitals. माँ उसको हॉस्पिटल्स और क्लिनिक्स में लेके गई. Doctors gave up all the hopes. डॉक्टर ने सारी उम्मीदें छोड़ दी. and declared him both physically and mentally defected. और क्या डिक्लेयर कर दिया कि वो फिजिकली भी और मेंटली भी डिफेक्टेड है. What his mother, लेकिन उसकी मदर ने इस बात को कभी भी एक्सेप्ट नहीं किया, इस बात को, that her son was mentally defected. His mother played an important role in his life. At last, Christy was able to express himself by written words. Last में क्रिस्टी ब्राउन ने अपने आप को written words के थ्रू एक्सप्रेस करना शुरू कर दिया. In this story, इस स्टोरी में he describes only a little part of his life. अब हम उसके करेक्टर की बात करते हैं तो बहुत सारे पॉइंट्स हैं जो हम उसके करेक्टर के डिस्कस करेंगे. Our first point is to discuss about his birth. क्रिस्टी ब्राउन के बर्थ के बारे में बात करते हैं. क्रिस्टी ब्राउन was born in Rotunda Hospital on 5th of June 1932. 5th of June 1932 में उसका जन्म हुआ. कहाँ पे हुआ? रटुंडा हॉस्पिटल में. His birth was difficult one. बर्थ जो है वो काफी डिफिकल्ट वन था. बोथ मदर एंड सन वर ऑलमोस्ट एट द पॉइंट ऑफ डेथ. माँ और बेटा लगभग मरने की कगार पर थे. आफ्टर हिज बर्थ, जब क्रिस्टी ब्राउन का बर्थ हो गया, हिज मदर वाज सेंट अवे. माँ को उससे दूर भेजा गया टू बिल्ड अप हर स्ट्रेंथ, अपनी स्ट्रेंथ को बिल्ड अप करने से, क्योंकि जब माँ बच्चे को जन्म देती है आफ्टर द बर्थ, मदर जो है वो वीक होगी. एंड हिज मदर वाज सेंट अवे टू बिल्ड अप हर स्ट्रेंथ फॉर सम वीक्स. कुछ हफ्तों के लिए माँ को दूर रखा गया. एंड ही वाज केप्ट इन द हॉस्पिटल, और उसको हॉस्पिटल में रखा गया विदाउट नेम, बिना किसी नाम के. कोई नाम नहीं उसका डाला गया. कब तक? until his mother was well enough to take him to
चर्च, जब तक उसकी माँ जो अब उसको चर्च तक नहीं लेके जाती, उसको बैप्टाइज्ड नहीं करते। तो ये था उसके बर्थ के बारे में। कहाँ जन्म हुआ? रोटुंडा हॉस्पिटल में। कब हुआ? 5 जून 1932 में। कैसा बर्थ था? इट वॉज अ डिफिकल्ट बर्थ, बोथ मदर एंड सन वर ऑलमोस्ट एट द पॉइंट ऑफ डेथ। आफ्टर हिज birth mother was sent away to build up her strength and he was kept in the hospital without name. Next point is about his family. अब हम क्रिस्टी ब्राउन की फैमिली के बारे में बात करते हैं। तो वी नो दैट क्रिस्टी ब्राउन हैड अ बिग फैमिली, बहुत बड़ा परिवार था। ही हैड लविंग पेरेंट्स, माता पिता प्यार करने वाले थे। पर्टिकुलरली हिज मदर, ज्यादा प्यार कौन करता था? मदर। देयर वर 9 चिल्ड्रन इन हिज फैमिली बिफोर हिज बर्थ। उसकी बर्थ से पहले 9 चिल्ड्रन जब उसकी फैमिली में थे। एंड ही बिलोंग टू द मिडिल ग्रुप, और वो कौन से ग्रुप से बिलोंग करता था? मिडिल ग्रुप से। आउट ऑफ टोटल 22, टोटल बच्चे कितने थे बेटे? 22 थे। 17 लिव्ड, 17 बच्चे जो है वो जिंदा रहे। एंड 4 डाइड इन इन्फेंसी, और 4 बच्चे जो है वो इन्फेंसी, बचपन में ही, चाइल्डहुड में ही उनकी क्या होगी? डेथ होगी। हिज फादर यूज्ड टू आउट एट ब्रिक लेन, पापा जो है वो ईंटें लगाने का काम करते थे, वो बाहर चले जाते थे। अर्निंग ब्रेड एंड बटर फॉर देम, उनके लिए क्या करते थे? ब्रेड और बटर मीन्स फूड का इंतजाम करते थे। तो अबाउट हिज फैमिली, क्रिस्टी ब्राउन हैड ए बिग फैमिली, ही हैड लविंग पेरेंट्स, पर्टिकुलरली हिज मदर। देयर वर 9 चिल्ड्रन इन हिज फैमिली बिफोर हिज बर्थ, बर्थ से पहले 9 बच्चे जो उसकी फैमिली में थे। सो ही बिलोंग टू द मिडिल ग्रुप, इसलिए वो मिडिल वाले ग्रुप से बिलोंग करता था। आउट ऑफ टोटल 22 थे, 17 लिव्ड एंड 4 डाइड इन इन्फेंसी। हिज फादर वाज ए ब्रिकलेयर and he earned bread and butter for them. This is all about Christie's family. Now let us discuss the third point, that is he was crippled by birth. बचपन में से ही उसको बहुत सारी क्या थी? प्रॉब्लम्स थी। He had so many problems. Christy Brown was crippled by birth. He had cerebral palsy. क्या थी इसको बेटे? cerebral palsy थी। That sustained, कब हुई वो? During pregnancy, जब उसकी माँ जो वो प्रेग्नेंट हुई, कुछ उस टाइम हुआ, कुछ at the time of birth हुआ, and first 2 years of his life. He had cerebral palsy sustained during pregnancy, at the time of birth, and the first 2 years of his life. His mother noticed that he had a habit of falling backward. माँ ने नोटिस किया कि उसके हेड को बैकवर्ड, पीछे की तरफ जो है वो गिरने की आदत है। His jaws, उसका जो जॉ था, माउथ था, would lock together tightly, वो बहुत बुरे तरीके से लॉक हो जाता था। He could not grasp the nipple of the bottle, बॉटल को वो पकड़ भी नहीं सकता था। His hands were remained clenched all the time, हाथ जो है वो बिल्कुल पूरे के मुड़े रहते थे। एंड दे ट्विस्टेड बैकवर्ड टाइटली, पहले उंगलियों का टेढ़ा होना, उंगलियों का मुड़ना, फिर वो पीछे की तरफ ऐसे बैकवर्ड हो जाना। His head had suddenly fell sideways, उसका हेड जो है वो सडनली साइडवेज पे लुढ़क जाता था। He could not speak up or walk, ना वो बोल सकता था, ना वो चल सकता था। He couldn't sit up properly without having a mountain of pillows around him, बिना पिल्लोज के, जब तक उसके इर्द गिर्द पहाड़ ना बना जाए, एक माउंटेन ना बना दिए पिल्लो का, तब तक वो बैठ भी नहीं सकता था। He had a snake-like movement all the time in his body except sleep, उसकी बॉडी में कुछ ना कुछ, जैसे सांप कभी सीधा नहीं रह सकता, कुछ ना कुछ उसमें मूवमेंट जो है वो होती ही रहती थी, वो ऑल द टाइम रहती थी एक्सेप्ट स्लीप। तो दिस इज ऑल अबाउट। पहले क्या प्रॉब्लम थी उसको? सेरेब्रल पाल्सी थी। कब हुई? ड्यूरिंग प्रेगनेंसी हुई, एट द टाइम ऑफ बर्थ हुई, फर्स्ट 2 years ऑफ हिज लाइफ हुई। उसका हेड जो वो पीछे की तरफ लुढ़क जाता था, मुंह जो है वो बुरे तरीके से लॉक हो जाता था। ही कुडंट ग्रैस्प द निपल ऑफ द बॉटल, हैंड जो है वो क्लाइंस्ड रहते थे, फिर ट्विस्टेड हो जाते थे बैकवर्ड की, हेड जो है वो साइड पे लुढ़क जाता था। कुडंट स्पीक, couldn't walk, couldn't sit properly without having the mountains of the pillows around him. He had a snake-like movement all the time in his body. So this is all about his physically defects. Now let us discuss the fourth point. He was a child of emotions.
क्रिस्टी ब्राउन एक इमोशन वाला बच्चा था। क्रिस्टी ब्राउन वाज ए चाइल्ड ऑफ इमोशंस। ही रिमेन्ड अलोन इन द बैक रूम। बिल्कुल जो पीछे वाला कमरा था उसमें बिल्कुल उसको अकेला रखा जाता था। और ऑन ए सनी वार्म डे, या फिर जिस दिन थोड़ी धूप निकली होती थी, आउट इन द गार्डन। फिर कहाँ पे रखा जाता था उसको? गार्डन में रखा जाता था। ही फेल्ट अलोन, बिल्कुल अकेला महसूस करता था। एंड लॉस्ट इन हिज ओन थॉट्स, और अपने ही ख्यालों में खोया रहता था। ही हैज ए थ्रस्ट फॉर अदर्स लाइफ, बाकी वाले बच्चों की लाइफ के लिए उसके अंदर एक प्यास थी। He thought that there was a wall of glass between his existence and others. उसको ये लगता था कि मेरी existence के बीच में, मेरी लाइफ के बीच में और दूसरे बच्चों की लाइफ के बीच में एक शीशे की दीवार है, जिसके इर्द गिर्द वो देख सकता है, फील कर सकता है, लेकिन ऐसा कर नहीं सकता। He wanted to run about. वह भी चाहता था कि मैं भी रन अबाउट करूं, मैं भी इधर उधर घूमूं। एंड लॉन्ग्ड फॉर टू प्ले विद द रेस्ट, और वह भी चाहता था कि मैं भी बाकी वालों के साथ प्ले करूं। Let us move to the point number 5, that is the role of mother. क्रिस्टी ब्राउन की लाइफ में उसकी माँ का क्या रोल था? क्रिस्टीज मदर रिफ्यूज डॉक्टर्स एडवाइस। पहली बात कि माँ ने डॉक्टर्स की जो एडवाइस थी, क्या एडवाइस थी डॉक्टर्स की? दैट हिज सन वाज मेंटली डिफेक्टेड। डॉक्टर बोलते थे फिजिकली भी और मेंटली भी डिफेक्टेड है, लेकिन मदर ने इस बात को क्या कर लिया? रिफ्यूज कर दिया, मना कर दिया। शी वॉज ए वुमन ऑफ डिटर्मिनेशन एंड फेथ। उसकी माँ जो है वो एक दृढ़ संकल्प वाली और एक विश्वास वाली औरत थी। शी इंस्पायर्ड क्रिस्टी ऑल द टाइम। उसने हर समय क्रिस्टी ब्राउन को इंस्पायर किया, प्रोत्साहित किया। शी शोड हिम द पिक्चर्स ऑफ एनिमल्स एंड फ्लावर्स। उसने एनिमल्स और फ्लावर्स की बहुत सारी पिक्चर्स जो उसको दिखाई। व्हेन क्रिस्टी स्नैच्ड अ पीस ऑफ चॉक फ्रॉम हिज सिस्टर मोना, जब क्रिस्टी ने अपनी सिस्टर मोना से चौक जो है वो छीना, शी केम फ्रॉम द किचन। इतनी देर में उसकी माँ जो है वो किचन से आई एंड नेल्ट डाउन, और घुटनों के बल उसके पास नीचे बैठ गई, बिसाइड हिम, उसके बगल में। शी डेलिबरेटली ड्रू द लेटर ए ऑन द फ्लोर, और बड़े अच्छे तरीके से माँ ने लेटर ए जो है वो फ्लोर के ऊपर बनाया। एंड आस्क्ड क्रिस्टी टू कॉपी इट, और क्रिस्टी ब्राउन को बोला कि बेटे इसको कॉपी करो। शी इनकरेज्ड हिम, उसने क्रिस्टी ब्राउन को बहुत ज्यादा इनकरेज किया। शी गेव हिम अ न्यू स्ट्रेंथ टू फाइट ऑल द डिफिकल्टीज। वह अपने बच्चे को हमेशा स्ट्रेंथ देती थी, पैशन देती थी, इंथुसियाज्म देती थी, टू फाइट ऑल द डिफिकल्टीज, उन सारी मुश्किलों से फाइट करने के लिए। एट लास्ट में क्या हुआ? शी प्रूव्ड एवरीवन रॉन्ग। लास्ट में क्रिस्टी ब्राउन की मदर ने सबको रॉन्ग जो है वो प्रूव कर दिया। तो दिस वाज द रोल ऑफ मदर। बेटे जी अलग से क्वेश्चन भी आ सकता है, यू हैव टू अटेम्प्ट इट। नेक्स्ट, अ चाइल्ड ऑफ क्लीन हैबिट्स। क्रिस्टी ब्राउन जो है नो डाउट ही वाज फिजिकली डिसेबल्ड, लेकिन ही वाज अ चाइल्ड ऑफ क्लीन हैबिट्स। क्रिस्टी ब्राउन वाज ए चाइल्ड ऑफ क्लीन हैबिट्स। ही हैड क्लीन नेचुरल हैबिट्स व्हाट ही कुड नॉट एड हिमसेल्फ। इस बात से कोई दो राय नहीं है कि वो अपने आप को एड नहीं कर पाता था, अपने आप को संभाल नहीं सकता था। इन दिस रेस्पेक्ट, इस मामले में हिज फादर टुक केयर ऑफ हिम। उसके फादर जो है उसकी देखभाल करते थे। He used to lie on his back. वह बैक के बल पड़ा रहता था all the time in the kitchen or in the garden. Clear? 7th point, attracted to see a chalk. A piece of chalk has changed the life of Christy Brown. एक छोटे से येलो पीस ऑफ चॉक ने उसकी टोटल लाइफ चेंज कर दी। A little piece of golden color changed his whole life. गोल्डन कलर का एक छोटा सा पीस ऑफ चॉक जो उसने अपनी सिस्टर से छीना विद हिज लेफ्ट फुट, उसकी वजह से उसकी टोटल लाइफ जो है वो चेंज होगी। He snatched a yellow chalk from his sister and tried hard to write something. उसने अपनी बहन से चौक छीना लेफ्ट फुट के साथ और कुछ लिखने की कोशिश की। With his mother's help, he drew the letter A. माँ की हेल्प से उसने लेटर A जो है वो ड्रॉ कर दिया with 3 attempts, 3 बार अटेम्प्ट करने के बाद। It was his road to a new world.
where he could express himself by written words. ये उसका एक नई दुनिया की तरफ एक नया रोड था जहां पर वो अपने आप को एक्सप्रेस कर सकता था। बेटे अब आपने 7 पॉइंट जो उसके करेक्टर के डिस्कस किए, अब आपको फ्लो चार्ट जो है वो बनाना है। तो फ्लो चार्ट में सेंटर में रखेंगे क्रिस्टी ब्राउन को। क्या क्या क्वालिटीज थी? ही वॉज इंटेलिजेंट चाइल्ड, ही वॉज क्रिपल बाई बर्थ, ही वॉज अ चाइल्ड ऑफ इमोशंस, ही वॉज क्रोक्ड मसल्स ऑफ, he was a sympathetic child, he was a great writer, he was physically disabled and imbecile child told by doctors. Now let us move to the last point, that is conclusion. In the end we can say that Christy Brown was crippled by birth, he was imbecile, croaked and physically handicapped right from his birth. He was a child of great emotions and feelings. What he got a sympathetic consideration from his family. Lastly, he proved everyone wrong. So this is the character sketch of Christy Brown. Dear students, thanks for watching. If you do not have subscribed my channel, do subscribe.